Okay, student, I have explained up to page number 96, structure of the polynucleotide chain. 98 Okay. सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा तक तो कंप्लीट किया है ना नंदिनी? यस मैम कर लिया. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही है ना? ओके यस यस. ओके बेटे, ठीक है. वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए and what I have told you earlier that you must have to know the number of nucleotides that are present in different type of organisms. ठीक है, तो उसमें एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ह्यूमंस जो है उसमें हैप्लॉइड कंटेंट जो है वो डीएनए का कितना है. ठीक है, तो आई एम ऑन पेज नंबर 96 and haploid content of human DNA is 3.3 into 10 raised to power 9 base pairs. This is clear बेटे? Beside this, we also have to memorize the number of nucleotides that are present in E. coli bacteria, because E. coli bacteria is used for research work in case of biology. It is a model organism. So 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs are present in this bacteria. All right. So these two आपने अच्छे से learn कर लेने हैं. ठीक है बेटे. उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था. एंड यू मस्ट रिमेम्बर. तनविंदर आर यू ऑल राइट? यस बेटे तनविंदर. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके बेटे. सो हियर आई हैव डिस्कस्ड कि न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस व्हेन अ चेन कंटेन्स सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, आई एम गोइंग टू रिकैप्चुलेट इट अगेन. शॉर्ट में बता रही हूँ. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उसका मतलब है कि उसमें खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अटैच है. एंड बाय व्हिच बॉन्ड दे गेट्स अटैच्ड? They are attached with the help of a bond that is present only among the nucleotides, and that bond is the phosphodiester bond. Okay बेटे, when two adjacent nucleotide they attaches with itself, ठीक है, with the help of a phosphodiester bond, then such a unit is known as a dinucleotide. And when so many nucleotides they also attaches in this chain with the help of so many phosphodiester linkages, then a long chain of a polymer is formed, and that is known as the polynucleotide. ठीक है, ये हमें मालूम है. और उससे पहले मैंने आपको बताया था, if we are talking about the nucleotide always consists of 3 things: phosphate group, nitrogenous bases, and third one is the sugar molecule. Here the sugar molecule is always a pentose sugar, deoxyribose in case of DNA and ribose in case of RNA. Okay mate, you are well familiar with the term nucleoside also. And what is a nucleoside? When a nitrogenous base it gets attached with the sugar molecule. जब nitrogenous base जो है वो sugar molecule से attach होता है. And you know that sugar molecule is a pentose sugar here. How many carbons are present in a pentose sugar? 5 carbons are present. So when this nitrogenous base it have to attach with the deoxyribose sugar which contains how many carbons? 5 carbon. तो ये नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा, जिसपे क्या प्रेजेंट होंगे? फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे. तो सच अ यूनिट फॉर्म इज नोन एज अ न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, एंड देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन फॉर दीस न्यूक्लियोसाइड्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव द नाइट्रोजीनियस बेस एडेनाइन, देन इन केस ऑफ आरएनए वी हैव टू यूज द टर्म एडेनोसाइन. ऑलराइट. और अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो उसके अंदर हम टर्म यूज करेंगे डीऑक्सी एडिनोसाइन. ऑलराइट. तो ये सारी चीजें जो है वो न्यूक्लियोसाइड के केस में हम यूज करते हैं. ये भी हमें मालूम है. और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्म होना है जब न्यूक्लियोसाइड जो है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाना है. एंड दैट फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड एट विच कार्बन? कार्बन नंबर 5. एंड दिस कार्बन हैज द फ्री फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स. एंड what I said, a polynucleotide chain. ठीक है, डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके अंदर कितने स्टैंड्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के? ठीक है, 2 स्टैंड्स हैं. अब ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स. सी, इफ डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, so I am talking about the first strand of the DNA. So this first strand of the DNA, okay, this strand it acts as the template strand. Okay, both the strands of DNA act as the template strand, but I am talking here about the first strand, and this strand has the polarity in which direction? 3' to
5 डैश डायरेक्शन। ठीक है बेटे, फर्स्ट स्टैंड की पोलैरिटी अगर 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन में है, तो सेकंड स्टैंड जो है उसकी पोलैरिटी किस डायरेक्शन में होगी? You must remember both the stands have anti-parallel polarity. This means if one stand run in the direction 3 dash to 5 dash, then the other stand run in the direction 5 dash to 3 dash. Okay, bete? Now what happened? Everybody knows कि every cell undergoes cell division, and during the process of cell division, ठीक है, there are 3 phases of cell cycle takes place. ठीक है, G1 phase, that is the growth period of the cell makes necessary changes in them and accumulate certain substances that are required for the cell division. That phase is known as the G1 phase. But besides G1 phase, there is a second phase, and that phase is known as the synthetic phase. And here the synthetic phase, the replication of the DNA takes place. ठीक है बेटे, रेप्लिकेशन वर्ड का क्या मतलब है कि पेरेंट डीएनए जो है उसने अपने जैसी क्या बनानी है, और कॉपीज बनानी है, और ये कॉपीज जो है उसने डॉटर सेल्स को देनी है। यानी वो रेप्लिका किसके बना रहा है? अपने रेप्लिकास बना रहा है, और इन रेप्लिकास को हम क्या कहेंगे? डॉटर डीएनए कहेंगे। ठीक है, तो अब आप ये याद रखेंगे कि सेल डिवीजन के दौरान पेरेंटल डीएनए जो है वो ओपन होता है, उसके दोनों स्टैंड्स ओपन हो जाते हैं, एंड बोथ द स्टैंड एक्ट एज द टेम्पलेट स्टैंड और द गाइडिंग स्टैंड्स। ओके बेटे, तो फर्स्ट स्टैंड which has the polarity in the 3 dash to 5 dash direction with the help of this strand. ठीक है, there is an enzyme present. What is the name of the enzyme? The name of the enzyme is DNA polymerase. The name of the enzyme is DNA polymerase. देखो नेम से ही पता लग रहा है, अगर वो DNA polymerase है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, पॉलीमराइजेशन करना। ठीक है, तो उसने क्या करना है, पेरेंट डीएनए जो है उसका जो स्टैंड है उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है उनको रीड करते जाना है, और सेल जो है उसमें फ्री बेसिस अवेलेबल है, उन बेसिस को उठाना है और उसको डॉटर स्टैंड जो है उसके ऊपर अटैच करते रहना। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल पेरेंटल डीएनए पे अगर एडेनिन प्रेजेंट है तो सेल में से कौन सा बेस उठाएगा? वो आपको मालूम है कि ऑलवेज एडेनिन इट गेट्स बाइंड विद थायमिन। इफ guanine is present on the parental strand, then from the cell constitution what base is picked up by DNA polymerase enzyme. So if guanine is present, तो उसने कौन सा बेस उठाना है? सेल में से साइटोसिन बेस उठाना है। ठीक है, तो इस तरीके से डॉटर स्टैंड जो है वो बनता चले जाता है। पर देयर इज अ प्रॉब्लम विद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑलवेज वर्क एफिशिएंटली if he is made to work in 5 dash to 3 dash direction. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंजॉय करके काम करता है बेसिस को अटैच करने का, अगर उसको किस डायरेक्शन में काम करने के लिए बोला जाता है? 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में स्टैंड बनाने के लिए बोला जाता है। तो आपको पता है कि अगर पेरेंटल स्टैंड 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन में है तो इसका मतलब डॉटर स्टैंड जो उसकी हेल्प से बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5 डैश टू 3 डैश होगी। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर क्या है? हैप्पी फील कर रहा है। ठीक है बेटे, क्योंकि उसकी पसंदीदा डायरेक्शन कौन सी है? 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन है। वो फटाफट बेसिस जो उनको पिक कर रहा है एंड इस तरह से डॉटर स्टैंड बन रहा है और बहुत ही हैप्पी है। इसलिए बनने वाला डॉटर स्टैंड कैसा है? कॉन्टिन्यूस स्टैंड है। ऑलराइट, सारे बेसिस जो है वो फटाफट अटैच हो रहे हैं एंड अ कॉन्टिन्यूस स्टैंड इज फॉर्म। बट इफ दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैज टू make a stand, dot a stand with the help of the second strand of the DNA, second parental strand of the DNA. ठीक है बेटे, दूसरा स्टैंड जो है डीएनए का, अगर उसकी हेल्प से इसको डॉटर स्टैंड बनाना पड़ता है तो आपको मालूम है कि दूसरे स्टैंड की पोलैरिटी कौन सी डायरेक्शन में है? 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में है। इसका मतलब बनने वाला डॉटर स्टैंड जो है उसकी पोलैरिटी क्या होगी? 3 डैश टू 5 डैश होगी। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में काम करना होगा, जो उसकी पसंदीदा डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एंजाइम जो है वो खुश नहीं रहेगा और वो स्लोली स्लोली काम करेगा। ठीक है बेटे, तो एक बेस उसने अटैच किया, इट टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, देन बोरिंग फील करेगा एंड देन वो नेक्स्ट बेस लेगा, उसको अटैच करेगा, फिर थोड़े टाइम रेस्ट लेगा, फिर नेक्स्ट बेस लेगा, उसको अटैच करेगा। So instead of a continuous stand, here a discontinuous stand is formed, and this continuous stand is actually in the form of so many fragments having variety of gaps
So this discontinuous strand was first studied by the Japanese scientist Okazaki. So in honor of the scientist Okazaki, these fragments of the discontinuous daughter strand are known as the Okazaki fragments. This is clear to all the students? ठीक है बेटे? तो फर्स्ट स्टैंड जो है उसकी हेल्प से बनने वाला डॉटर स्टैंड कॉन्टिन्यूस स्टैंड हुआ, और दूसरा वाला जो डीएनए का स्टैंड है उसकी हेल्प से बनने वाला जो डॉटर स्टैंड है वो डिसकंटिन्यूस स्टैंड है। डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स में काफी सारी फ्रैगमेंट्स हैं और इन फ्रैगमेंट्स को क्या कहती हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो दिस इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए की डीएनए अपनी कॉपीज जो है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटे, इसके अलावा on the page number 97 I have taken one paragraph that is related with the discovery of the DNA. So you must have to remember the name of the scientist Frederick Meisker, who discovered DNA for the first time, and he has given the name nucleon to the DNA. Later on, two scientists have find out the structure of the DNA and they are known as Watson and Crick. Okay, Watson and Crick, they take help from two other scientists from the field of chemistry, and their names are Rosalind Franklin and Morris Wilson. And this Morris Wilson and Rosalind Franklin, they have done one landmark discovery in the field of chemistry, and that is X-ray diffraction method. So with the help of X-ray diffraction method, they are able to find out the double helical structure of the DNA. Okay, today I am not going to explain the double helical structure again because I have explained so many times. So later Excuse on, me, ma'am. yes, beta. Ma'am, Tanvinder is waiting in the room. Yes. Yes, ma'am, she is messaging me. Okay, So, okay, no problem. please let her in. Okay, beta. Okay, one rule you must have to remember here, and that is Chargaff rule. Okay, what Chargaff rule said? That the ratio of the two nucleotides in a polynucleotide chain is always equal to unity. ठीक है बेटे, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है डीएनए की, उसके अंदर जो बेसिस प्रेजेंट है, नाइट्रोजेनियस बेसिस प्रेजेंट है, ठीक है, उनका रेशियो जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो what is the proper statement that was given by the scientist Irvin Chargaff, that for a double stranded DNA the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant, and that is equal to 1. This is clear bete? Central dogma I have explained. If any person asks you a question that define the term central dogma, तो उसका statement आप क्या देंगे? That in a cell there is a unidirectional flow of genetic information from DNA to RNA and RNA to proteins with the help of two processes. ठीक है, डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। इस होल थिंग को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ओके बेटे, नाउ आई एम टुडे स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक, पेज नंबर 99 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, एंड पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। ठीक है, एज वी ऑल नो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर। So how this long polymer is packed inside the nucleus, though its dimension is very much larger than the nucleus. ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि in case of prokaryotes and in case of eukaryotes there is a wide difference in the cell structure. ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, दिस मीन्स the DNA is also scattered in the cytoplasm of the cell. ठीक है, पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो रखा है। ये डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही बना रहता है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण है, कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें डीएनए जो है इट इज नॉट फ्री, इट इज बाइंडेड विद सर्टेन प्रोटीन्स, and these proteins have opposite charge to that charge which is present on the DNA. कहते हैं कि ये डीएनए जो है वो कुछ प्रोटीन्स के द्वारा बाइंडेड है और ये प्रोटीन्स जो है वो डीएनए के अपोजिट चार्ज रखते हैं। तो अगर डीएनए जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? ठीक है बेटे, अगर डीएनए जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इन प्रोटीन्स पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उन्होंने कहा कि जिस प्लेस पे इन प्रोटीन्स की हेल्प से डीएनए जो है एक्यूमुलेट होके रहता है, दैट प्लेस
is known as nucleoid in case of prokaryotic cell. ठीक है, so that you have learned in 9th standard, we have used one term nucleoid. So what is nucleoid? Nucleoid is that region in the prokaryotic cell where the DNA aggregates with the help of certain proteins which carry opposite charge to DNA. I said if there is a negative charge present on the DNA, this means a positive charge is present on those proteins. All right, bete? So this is concerned with prokaryotes. हाँ जी, नंदिनी. DNA पे नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? बेटा देखो, कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? अगर उसमें सर्टेन यूनिट्स जो है वो ऐसी प्रेजेंट है जो नेगेटिव रखती है. ठीक है, तो डीएनए का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आपको मालूम है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजीनियस बेसिस भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो किस तरीके का चार्ज रखते हैं? बाय द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन आयंस दैट विल डिसाइड द चार्ज ऑन द डीएनए. ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि प्रोटीन्स जो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो हम प्रोटीन्स के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे. तो आपको मालूम है कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स की हेल्प से बनते हैं. ठीक है, एंड यू हैव लर्नड लास्ट ईयर इन 11th क्लास कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसिडिक भी हैं, बेसिक भी हैं और न्यूट्रल भी हैं. ठीक है, तो एसिडिक हमने क्यों कहा था? अगर उनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से जो आए हुए हैं वो कैसे हैं? ज्यादा है. अगर उनके अंदर अमाइन ग्रुप्स जो हैं वो ज्यादा हैं तो वो बेसिक अमाइनो एसिड है, और अगर दोनों बराबर हैं तो फिर वो कैसी अमाइनो एसिड्स हैं? न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. तो मैं कह रही हूँ कि अगर प्रोटीन्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसमें अमोनिया के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके बेटे, उसी तरह से डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस का रोल होता है. ठीक है, क्लियर है? अब देखिए मैं फिर से इसी टॉपिक पे आती हूँ. तो ये तो था प्रोकैरियोटिक सेल्स में. अब वो कहते हैं कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल दिस प्रॉब्लम इज नॉट देयर. तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो उसमें प्रेजेंट होने की वजह से द डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस विद इन द क्रोमोसोम्स. ठीक है बेटे, बट दिस डीएनए बिकॉज इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर, so this DNA, how it is packed so tightly inside the chromosome, so here a special type of proteins are involved which carry positive charge and the name of these proteins are the histone proteins. ठीक है बेटे, तो यहाँ पे कहते हैं कि खास तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उनका नेम है हिस्टोन प्रोटीन्स. इन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? बिकॉज इन प्रोटीन्स को बनाने वाली अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कैसी हैं? बेसिक अमाइनो एसिड्स. They are not the acidic amino acids, they are the basic amino acids. ठीक है बेटे, अब कहते हैं कि ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं they are not the single units. ये हिस्टोन प्रोटीन सिंगल यूनिट्स नहीं है. These histone proteins actually consist of how many molecules? 8 molecules. ठीक है बेटे, 8 जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो एक साथ रहते हैं और वो क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं. और ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके आसपास डीएनए जो है विच इज अ लॉन्ग पॉलीमर, उसने अपने आप को क्या किया हुआ है? रैप किया हुआ है. सो देयर इज वन डायग्राम गिवन इन योर बुक, फिगर नंबर 6.4a. देखो, बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज गिवन इन योर बुक दैट रिप्रेजेंट द हिस्टोन ऑक्टामर. तो हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर कितने हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 8 रहेंगे, इसलिए इसको ऑक्टामर का नेम दिया गया है. और उसके आसपास जो लॉन्ग चेन है डीएनए की वो उसको रैप करती है. दोनों साथ साथ क्यों बने हुए हैं? बिकॉज डीएनए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. और हिस्टोन ऑक्टामर जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है बेटे, तो अब वो कहते हैं कि सारी चीजें जो है वो किसके अंदर हो रही हैं? क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है. तो यू नो दैट व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. इंस्टेड ऑफ क्रोमोसोम व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल? A free thread-like structures are present, which are known as the chromatin fibers or the chromonimata. तो अगर इन thread-like structures को हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसे नजर आते हैं कि इन thread-like structures में छोटे छोटे से क्या हैं? beads हैं. ठीक है बेटे, small beads are present in these thread-like structures. So these small beads are actually the nucleosomes. They are known as the nucleosome. और एक न्यूक्लियोसोम जो है उसके अंदर 1 हिस्टोन ऑक्टामर और उसके साथ रैप
डीएनए होता है। इस तरह के न्यूमरस न्यूक्लियोसोम यूनिट्स जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, क्रोमेटिन फाइबर्स में या क्रोमोनिमेटास के अंदर प्रेजेंट है, जो सेल के न्यूक्लियस में है। जब सेल डिवाइड करता है उसके बाद ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं वो क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, एंड वो बटरफ्लाई शेप एज्यूम कर लेते हैं। ओके बेटे, तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर न्यूक्लियोसोम्स, तो न्यूक्लियोसोम्स आर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, one is protein which are known as histone octamer, and another one is a long polymer of DNA that is wrapped around this histone octamer, and this whole unit is known as nucleosomes. So many nucleosomes are present in the chromonimata or the chromatin fibers. ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि ये उसी तरह से नजर आते हैं जैसे कि लेडीज जो है वो एक स्पेशल टाइप की ज्वेलरी जो है वो यूज किया करती थी when they have to visit some specific occasion, and that is known as मटर माला in हिंदी। ठीक है बेटे, मटर माला एक खास तरह का ज्वेलरी है जो काफी रिच लेडीज जो है वो पहनती हैं जब वो कहीं जाती हैं। तो मटर माला जो है उसके अंदर गोल्ड के छोटे छोटे से क्या होते हैं, मोती होते हैं, और बाकी जो है चेन होती है गोल्ड की। तो आप ये समझ लीजिए कि गोल्ड के जो छोटे से आपके पास, ठीक है, मोती है, वो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम है, और जो चेन आपको नजर आ रही है वो क्रोमेटिन फाइबर्स की है। ओके स्टूडेंट्स, अब वो कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर these chromatin fibers, ठीक है, these chromatin fibers are sometimes very tightly packed or sometimes they are very lightly packed। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने क्रोमेटिन जो है उसको टू कैटेगरीज के अंदर रखा है, they may be euchromatins or they may be heterochromatins। I am on page number 100 and there are two terms introduced here, euchromatin। तो यूक्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन का वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और जब हम उन्हें स्टेन करते हैं तो वो लाइट स्टेन की फॉर्म में नजर आते हैं। एंड हेट्रोक्रोमेटिन वो पार्ट होता है क्रोमेटिन्स का जहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो डेंसली पैक्ड होते हैं और स्टेन करने पे हमें कैसे नजर आते हैं, डार्क नजर आते हैं। ओके बेटे, तो कहते हैं कि जो यूक्रोमेटिन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन, बिकॉज यूक्रोमेटिन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और हेट्रोक्रोमेटिन्स जो है उनका ट्रांसक्रिप्शन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि डीएनए जो है उससे जब मैसेंजर आरएनए ने बनना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो हमारे लिए वही चीज इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम का वही पार्ट इंपॉर्टेंट है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे वो पार्ट कौन सा है, यूक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन जो डार्कली स्टेन्ड क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसका हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। दिस इज क्लियर बेटे। एक चीज उसने और बताई है, कहते हैं कि बिसाइड द हिस्टोन प्रोटीन्स देयर आर सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रोटीन्स that are also play a significant role in the packaging of DNA helix, and these proteins which are very much complicated, they are known as the non-histone proteins। they are known as non-histone proteins। ठीक है, तो बुक में हमने नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का सिर्फ नेम रखे, याद रखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को जानने की हमें इस लेवल पे कोई जरूरत नहीं। ऑल राइट, दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। इज देयर एनी क्वेश्चन in this topic, packaging of DNA helix? Yes madam, unmute yourself and speak up। No ma'am। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? Yes ma'am। Shall I proceed further? Yes ma'am। Okay, my next topic is search of the genetic material। ठीक है, what is given? हाँ जी, yes yes, speak up। मैम एक बार ब्रीफली बता दो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स वाला। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो है इसको हमने बेटे टू टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है बेटे, तो व्हाट हैपन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, as we know that a well defined nucleus is absent, so since the nucleus have no nuclear membrane, this means the DNA should be scattered in the cytoplasm, but what the author said, the DNA is not scattered, it is located at a particular place because of the presence of certain proteins that carries opposite charge to DNA. So as scientists have discovered that the charge on the DNA is negative charge, this means those proteins have what kind of charge? Positive charge. And the reason where this DNA is present,
That region in prokaryotic cell is known as nucleoid. It is known as nucleoid. Okay, bete? And in case of eukaryotes, what is the special thing? A well-defined nucleus is present. Then you know that inside the nucleus chromosomes are there, and inside the chromosome DNA helix is present. Okay, bete? And when the cell is not divided, then we know that instead of chromosome, what is present inside the nucleus? Chromatin fibers are present. So this means DNA is running inside the chromatin fibers. So what the author said कि DNA जो है वो यहाँ पर अकेला नहीं होता. DNA जो है उसको क्या करता है? DNA अपने आप को रैप करके रखता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यूनिट्स के साथ जिसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं. और इस हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर कितने हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन्स एक साथ रहते हैं और उसके साथ डीएनए अपने आप को रैप कर लेता है. तो इस होल यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. तो इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर खूब सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट है. ठीक है बेटे? तो कहते हैं कि ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर कई जगह पे बहुत ही लाइटली पैक्ड है और कई जगह पे बहुत टाइटली पैक्ड है. जहां पे लाइटली पैक्ड है और जब उनको स्टेन किया जाता है तो वो लाइट स्टेन आती है. उन क्रोमेटिन्स को हम क्या कहते हैं? यू क्रोमेटिन्स कहते हैं. और जो टाइटली पैक्ड है उन्हीं को जब स्टेन किया जाता है तो डार्क स्टेन आती है एंड दे आर नोन एज द हेटेरोक्रोमेटिन. दोनों में से यू क्रोमेटिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करते हैं एंड हेटेरोक्रोमेटिन इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल इन ट्रांसक्रिप्शन. ओके बेटे? इसके अलावा वो कहते हैं कि फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स नॉट ओनली द हिस्टोन प्रोटीन्स दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. Instead of histone proteins, there are one special type of complicated proteins involved, and they are known as the non-histone proteins. Clear, Tanvinder? Yes, बेटे Tanvinder, Yes. this is clear. Yes. अब जब आप इस टॉपिक को रीड करेंगे अप टू पेज नंबर 100 तो आपको पता लग जाएगा. ठीक है बेटे? I am taking the next one, that is search for genetic material. So here I am going to discuss about the experiment that was done by the scientist Frederick Griffith. Okay, bete? So what is happening before these experiments? So it took long time for the scientists to accept that DNA is the genetic material and it is not the proteins which act as the genetic material. So time to time scientists have done so many experiments to prove this, that not the proteins, it is actually the DNA which act as the genetic material in majority of the experiment. And one of that scientist is the scientist Frederick Griffith. ठीक है बेटे? Frederick Griffith जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की फॉर्म में एक माइस को यूज किया और इसके अलावा उन्होंने बैक्टीरियम लिया. एंड बैक्टीरियम कौन सा था यहाँ पर? तो बैक्टीरियम यहाँ पे निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरियम था विच इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe. ठीक है बेटे? व्हाट द साइंटिस्ट डिड एट दैट टाइम, उसने एक कल्चर प्लेट ली और उस कल्चर प्लेट के ऊपर कल्चर किया बैक्टीरियम का जिसका नेम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe. और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe की जब कल्चरिंग की गई तो व्हाट द साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट ऑन द कल्चर प्लेट दिस बैक्टीरियम फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ कॉलोनीज. One is smooth colonies which are shiny in nature and other one is rough colonies. ठीक है बेटे? शाइनी वाली जो कॉलोनीज थी वो स्मूथ कॉलोनीज थी और स्मूथ कॉलोनीज वाले बैक्टीरियम जो थे वो विरुलेंट थे. यानी जब उनको यूज किया जाता था किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो क्या करते थे? डिजीज कॉज करते थे, विरुलेंट थे. और जो रफ वाले बैक्टीरियम की कॉलोनीज थी उनको जब यूज किया जाता था तो वो किसी तरह की कोई डिजीज नहीं करते थे. तो डिजीज आपको पता है कि कौन सी है? निमोनिया. ठीक है? अब उन्होंने क्या किया? माइस ली एंड वन बाय वन उसने क्या किया? स्मूथ स्टेन जो है उसको भी यूज किया एंड रफ स्टेन को भी यूज किया. ठीक है बेटे? तो फर्स्ट टाइम उसने स्मूथ जो स्टेन है उसको यूज किया बैक्टीरियम की एंड इंजेक्टेड इनटू द माइस. देन व्हाट ही ऑब्जर्व दैट द माइस विल डाई बिकॉज ऑफ निमोनिया बिकॉज स्मूथ कॉलोनीज आर विरुलेंट इन नेचर. And then he used the rough colonies and injecting the mice. What he observed, the mice will not die and mice remains live. और उसके बाद उसने क्या किया? थोड़ा सा ट्विस्ट लाया. वो उसने क्या किया? जो स्मूथ कॉलोनीज थी उसको पता लग गया था कि वो विरुलेंट कॉलोनीज है तो उसने इसको हीट किल्ड कर दिया. उसने कहा कि इसमें जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर है अगर मैं इसको हीट किल्ड करूंगा
तो वो डिजीज कॉजिंग फैक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरियम जो है उसको जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो उसने देखा कि माइस जो है वो लाइव रहती है, उसकी डेथ नहीं होती। ठीक है बेटे। पर उसके बाद उसने क्या किया, ये जो हीट किल्ड बैक्टीरियम्स थे उसको रफ वाले जो थे, जो नॉन विरुलेंट थे, उसमें मिक्स कर दिया और फिर माइस पे अप्लाई किया। तो वो क्या देखता है कि माइस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तब वो क्या हो गया, प्रॉब्लम में फंस गया। अब उसने सोचा कि मैं तो स्मूथ स्टेन वाले बैक्टीरियम को हीट किल कर चुका हूँ और उसको मैंने रफ में मिक्स किया है, तो रफ तो नॉन विरुलेंट है, तो देन व्हाई द माइस डाई। ठीक है बेटे। तो एट दैट सिचुएशन फेडरिक ग्रिफ्ट इज नॉट एबल टू गिव द आंसर। बस उसको ये पता लग गया कि भाई स्मूथ सेल्स जो है उसमें कोई ऐसी चीज है जो हीट देने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, और वही स्मूथ सेल में से किसके अंदर एंटर हुई है, रफ सेल्स में एंटर हुई है। और उसी की वजह से रफ सेल्स में कौन सी प्रॉपर्टीज आई हैं, विरुलेंट प्रॉपर्टीज आई हैं, और उसी की वजह से बैक्टीरियम जो है उन्होंने एक्शन परफॉर्म किया है और माइस जो है उसकी डेथ हो गई है। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई कौन सी चीज ट्रांसफर हुई होगी, देखो दोनों चीजें हैं, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, तो साइंटिस्ट विल नॉट हैव एनी आंसर एट दैट टाइम। साइंटिस्ट के पास कोई आंसर नहीं था। तो लेटर ऑन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ग्रिफ्ट, एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफ्ट का था उसको फर्दर कंटिन्यू किया। ठीक है बेटे। थ्री साइंटिस्ट के द्वारा, एंड दीज थ्री साइंटिस्ट आर एफ्री, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। अब देखो अभी तक ये प्रॉब्लम बनी हुई थी कि पता नहीं लगा था कि डीएनए ट्रांसफर हुआ है कि प्रोटीन्स ट्रांसफर हुए हैं। तो तीनों साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने फेडरिक ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट को फिर से रीओपन किया, and they have to prove कि which is actually the genetic material. For this purpose they have selected three type of enzyme: DNA digesting enzymes known as DNases, RNA digesting enzyme known as RNases, and protein digesting enzyme known as proteases. और वन बाय वन उसने क्या किया, जो हीट किल्ड स्मूथ सेल्स थे उनके ऊपर ये तीनों तरह के एंजाइम अप्लाई किए। ठीक है बेटे। तो जब हीट किल्ड स्मूथ सेल्स जो है उसके ऊपर आरएनएसेस एंजाइम अप्लाई किए गए तो आरएनए जो है वो माइस के अंदर पास नहीं हो सका। अब देखो आरएनए पास नहीं हुआ है, पर दो चीजें तो पास हुई है ना, प्रोटीन भी पास हुआ है, डीएनए भी पास हुआ है, इसलिए माइस की क्या हो गई है, डेथ हो गई। ठीक है बेटे। सेकंड केस में उसने प्रोटीएसेस एंजाइम यूज किए तो प्रोटीन्स ट्रांसफर नहीं हुए, डीएनए और आरएनए ट्रांसफर हुए, तो फिर भी माइस जो है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और थर्ड केस के अंदर उसने क्या किया, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यूज किए, और इस केस में उसने ऑब्जर्व किया कि माइस की डेथ नहीं होती है। इसका मतलब माइस की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस ना तो प्रोटीन था ना ही आरएनए था, बल्कि कौन था, डीएनए था। तो इस तरीके से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अमंग द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सेल, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, आउट ऑफ these it is not the RNA, it is also not the proteins, but it is only and only the DNA that is transferred from the heat killed smooth cells to rough cells, and that introduce the virulent properties in the rough cell. So DNA is the hereditary material. This is clear to all students? Yes बेटे। यस मैम। तो देखो ये क्वेश्चन हमें 5 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा हमेशा। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक के अंदर भी बैक एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया। ओके बेटे। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय द साइंटिस्ट फेडरिक ग्रिफ्ट, एंड हाउ द साइंटिस्ट मैक्लॉयड मैककार्टी जो है उन्होंने कैसे प्रूव किया कि इट इज नॉट द प्रोटीन बट इट इज एक्चुअली द डीएनए that act as the genetic material. So it is a 5 mark question, and from the last 10 to 15 years ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर लगातार आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। किसी ना किसी फॉर्म के अंदर हमेशा ही ये क्वेश्चन प्रेजेंट होगा, तो इसको सभी स्टूडेंट्स जो है उनके टिप्स पे होना चाहिए। ओके बेटे। तो कहते हैं कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द साइंटिस्ट फेडरिक ग्रिफ्ट, स्टिल सम ऑफ द साइंटिस्ट दे डू नॉट एक्सेप्ट द थिंग। ठीक है। जबकि अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया था फेडरिक ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट से, जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हम कहते हैं, किसने, मैक्लॉयड मैककार्टी ने। पर फिर भी बहुत सारे ये जो साइंटिस्ट थे उनका एक पूरा ग्रुप जो था वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल होता है, प्रोटीन्स नहीं होते। तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन बाय फेडरिक ग्रिफ्ट, ठीक है, देयर इज वन अनदर एक्सपेरिमेंट डन बाय 2 other scientists
to prove that DNA is the hereditary material and it is not the proteins. And these scientists are the Hershey and Chase. ठीक है बेटे, तो इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट एग्जिस्टेंस में आया, जो जिसने ये प्रूव किया 100% कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल होता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं. तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बाद सभी साइंटिस्ट जो है उन्होंने फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया कि डीएनए जो है वही हेरिडिटरी मटेरियल है एंड प्रोटीन नहीं. ओके, so that is a long experiment. We will discuss that experiment tomorrow. ठीक है, तो today students will revise two topics. One is packaging of the DNA helix and second one is transforming principle up to continuation of this principle by scientist McCarthy McLeod. यहाँ तक सारा बच्चे पढ़ लेंगे. Okay बेटा, any question from your side? Any questions from your side? I am not teaching the topics very, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक को मैं बहुत तेजी से चला रही हूँ, बिकॉज चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग सम ऑफ द न्यू थिंग्स in this chapter which you have not learned in your previous classes. So every student must attend the Zoom session regularly, and whatever pages I have taught you, that you must have to revise, otherwise you are not able to understand the other concepts that are coming. This is clear to all the students? Yes ma'am. Yes ma'am. सिर्फ मैंने Yes, 2 पेजेस करवाए हैं और वो 2 पेजेस आज ही करने हैं, कल नहीं करने, क्योंकि आज ही करने से हमें कल जो कराया जाना है वो हमें पता लगेगा, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम. ऑलराइट बेटा? Okay ma'am. Okay, shall we end the meeting now? Kamalji sir? Yes, Kamalji sir, we are No going. problem. Thank you. Okay sir. Thank you very Thank much, you, ma'am. ma'am. Thank you.